Hello everyone, I welcome you all for this wonderful video of a topic called subsidiary books. This video will be extremely useful to standard 11 students of all the boards, that is Maharashtra State Board, ISC Board, CBSE Board, as well as students who are pursuing CA Foundation course. In लोग सब के लिए this video will be extremely useful. So let's understand what exactly is subsidiary books. We'll pick up an example. Let us say a business like Big Bazaar. उसका नाम तो बिग है ही, उसका साइज भी कितना बिग है ना, तो सो बिग. अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सारा डिपार्टमेंट्स है, सब जगह पर ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली चालू है. करेक्ट? सो it is very difficult for these kind of huge organizations to keep one single journal book to record their transactions, because simultaneously so many transactions are happening. तो एक सिंगल जर्नल बुक रख के काम करना ऐसा वाला बिजनेस के लिए नामुमकिन हो जाता है, बड़ा बड़ा बिजनेस हाउसेस के लिए. सो फॉर देम इट बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट टू सब डिवाइड द जर्नल into various mini journals. So this subdivision is called as subsidiary books. Am I clear? The subsidiary book simply means subdivision of journal book. In big organizations, it is not possible to record all the business transactions in one single journal book. So for the purpose of convenience, the journal book is subdivided into mini journal books. These mini journals are understood as subsidiary books. So कुल मिला के there are 8 subsidiary books. तो let's quickly run through कि ये 8 subsidiary books कौन से उनके नाम क्या है. Let's try to understand. The first book is called as purchase book. Second one is called as sales book. Then we have something called as purchase returns book. Then we have something called as sales returns book. Then there is a cash book, then there is a bills receivable book, then there is a bills payable book, followed by journal proper book. इस तरह का 8 different types के subsidiary books है. Each book has got a unique role. Okay, every book has got a unique role. We will be discussing them very soon. Okay, the next few minutes हम लोग उसमें spend करने वाले हैं, हर book का role क्या है. In the meantime, this bills receivable book and bills payable book is not a part of standard 11th syllabus. Okay, at least not in Maharashtra State Board and ISC Board. All right. Now, let us understand all these books in detail. ये book का role क्या है, उसका format क्या है, आइए हम ये सबको समझते हैं. We'll begin with purchase book. So purchase book is also known as bought book या purchase day book. Now why the book, why it is called day book? Because subsidiary books क्या है, journal का टुकड़ा है, and journal is day book. बिजनेस का डेली ट्रांजैक्शन जो बुक में रिकॉर्ड होता है वही जर्नल है, और सब्सिडरी बुक भी जर्नल्स ही है, मिनी जर्नल्स है. करेक्ट? तो परचेज बुक का और एक नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉट बुक या ऑल्सो कॉल्ड एज परचेज डे बुक. अब ये बुक में क्या रिकॉर्ड करने का? सो इन दिस बुक यू विल रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. प्लीज मार्क दीज वर्ड्स. गुड्स रहना चाहिए एंड क्रेडिट पे लिया हुआ रहना चाहिए. देन एंड ओनली व्हेन यू विल रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक, अदरवाइज यू विल नॉट रिकॉर्ड. In other words, we should not record cash purchases of goods, and we should also not record purchases of assets, whether for cash or on credit, doesn't matter. Asset लोगे तो भी purchase book में नहीं आएगा. So please drill this concept into your head कि purchase book में अगर किसी को भी आने का है तो वो ट्रांजैक्शन किस चीज का रहना चाहिए, गुड्स का रहना चाहिए, एंड इट शुड एसेंशियली बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रहना चाहिए.
then only it will come in purchase book. Now whenever you buy goods, okay, along with the goods you receive a bill from the supplier. That's obvious, right? This bill which you get from your supplier is called as invoice. Invoice is a bill which you receive from your supplier in case of credit purchases, and that invoice is called inward invoice. क्या बोलते हैं उसको? Inward invoice. हम goods खरीद रहे और goods के साथ साथ हमको एक bill मिल रहा है. That bill is called inward invoice. Is that concept clear to all of you? Now purchase book का format कैसा है? So this is the format of purchase book. The purchase book looks like this. We have a column called date, where we record the date of the transaction. Then we have a column called name of the supplier. Now why do we need to write this? Because यहाँ पे सिर्फ credit purchases लिखने वाले हैं हम लोग. So credit purchases में अपना और सामने वाले का लेन देन doesn't get over on the date of transaction. इसलिए किससे खरीदा उसका नाम becomes very very important to us. इसके लिए हम लोग name of supplier लिखेंगे. LF कॉलम रहेगा बिकॉज आखिर में ये जर्नल है तो यहां से वो लेजर में पोस्ट होने वाला है, इसके लिए LF. इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एज आई टोल्ड यू, व्हेन यू बाय द गुड्स अलोंग विद द गुड्स यू गेट अ बिल, तो बिल नंबर क्या है वहां पे लिखने का और अमाउंट वहां पे लिखने का. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर परचेज बुक. क्लियर? लेट्स स्पीक अबाउट नाउ सेल्स बुक. तो सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करने का? तो इन दिस बुक यू विल रिकॉर्ड ओनली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. गुड्स रहना चाहिए, उधार पे बेचा हुआ रहना चाहिए. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने का, वरना सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करने का ट्रांजैक्शन को. सो इन अदर वर्ड्स, अगर आपने गुड्स बेचा फॉर कैश, जिसको हम लोग कैश सेल्स करके भी बोलते हैं, या आपने एसेट बेचा, कैसा भी बेचा एसेट, कैश लेके बेचा या उधार पे बेचा, दिस विल नॉट कम इन सेल्स बुक. सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट विल कम इन सेल्स बुक. ओनली टू थिंग्स. Number one, it should be goods. Second, the goods need to be sold on credit. Only then you will enter it in sales book. If you sell goods for cash, that will come in another book called cash book, not in sales book. If you buy assets for cash, it will come in cash book. If you buy assets on credit, it will come, if you sell assets on credit, it will come in some other book. That will speak about it later. जब हम goods बेचते हैं तो गुड्स के साथ साथ हम लोग कस्टमर को एक बिल देते हैं. दैट बिल इज कॉल्ड इनवॉइस, या उसका और एक नाम है आउटवर्ड इनवॉइस. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड आउटवर्ड इनवॉइस? बिकॉज गुड्स के साथ साथ बिल भी जा रहे हैं ना, इसको आउटवर्ड. एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसके लिए द बिल इज कॉल्ड इनवॉइस. सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा होगा? एग्जैक्टली परचेज बुक जैसा ही होगा. दो ही फर्क पड़ेगा, जहां पर नेम ऑफ सप्लायर था वहां पर नेम ऑफ कस्टमर आ जाएगा, जहां पर इनवर्ड इनवॉइस था वहां पर आउटवर्ड इनवॉइस आ जाएगा. बाकी सब चीज तो एकदम सेम है. नाउ लेट्स स्पीक अबाउट परचेज रिटर्न्स बुक. नाम ही देखो, परचेज रिटर्न्स मतलब परचेज किया हुआ गुड्स हम लोग वापस कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न्स आउटवर्ड्स. फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. परचेज रिटर्न्स बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, द आंसर इज रिटर्न्स आउटवर्ड्स बुक. The goods are going out. You purchase the goods, you are returning it to a supplier, it's going out. तो returns outwards book, ये उसका और एक नाम है. तो इसमें क्या रिकॉर्ड करने का? You will record the goods returned to supplier, but those goods must have been purchased on credit. मतलब उधार पे लिया हुआ goods supplier को वापस किया आपने, तो it will come in purchase returns book. Clear? Now, when I return goods to my supplier, along with the goods, I need to send a document to the supplier, and that document is called as debit note. Okay, मैं goods return कर रहा हूं, तो goods के साथ साथ मेरा supplier को मैं एक document send करेगा. That document is called debit note. तो ये document में मैं actually क्या लिखेगा? I'll write कि dear supplier, मैं आपको इतना रुपए का गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, करेक्ट? और सिंस मैं आपको इतना रुपए का गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, उसकी वजह से मैं आपका अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं. ऐसा आई विल सेंड अ लेटर
to my supplier, that letter is called debit note. So debit note is basically a document sent to the supplier to state that his account, which was earlier credited at the time of purchase, is now being debited for the goods which are being returned. क्लियर है? अभी सवाल ये है सर, गुड्स रिटर्न में क्यों करेगा सर? तो क्या क्या रीजन रह सकता है? फर्स्ट इज डिफेक्टिव है, इसके लिए वापस कर रहा हूं मैं. द सेकेंड रीजन कुड बी प्राइस डिफरेंस, मुझे कोट कुछ और प्राइस किया बट गुड्स इवेंचुअली आया कुछ और प्राइस वाला, या फिर सैंपल कुछ और बताया बट जो माल हकीकत में डिलीवर किया वो कुछ और निकला. ये सब रीजंस की वजह से आई विल रिटर्न गुड्स टू माय सप्लायर. क्लियर एकदम? फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न्स बुक, दिस इज द फॉर्मेट. डेट, नेम ऑफ सप्लायर, बिकॉज गुड सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं हम लोग. डेबिट नोट नंबर, द डॉक्यूमेंट विच वी इश्यू, उसका नंबर एंड अमाउंट. सेल्स रिटर्न्स बुक, ऐसा पॉसिबल है ना कि हमने गुड्स बेचा था और हमारा कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिया सेम रीजंस की वजह से. कस्टमर बोलता है डिफेक्टिव है, कस्टमर बोलता है सैंपल में कुछ और बताया आपने कुछ और माल दिया, या प्राइस में डिफरेंस है, अलग अलग कारण से कस्टमर वापस कर रहा है. दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स इनवर्ड्स. सेल्स रिटर्न्स, रिटर्न्स इनवर्ड्स, बेचा हुआ माल इज कमिंग इन. Another name of sales returns is returns inwards. So ये बुक में क्या रिकॉर्ड करने का? रिटर्न ऑफ गुड्स विच वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट. उधार पे बेचा हुआ गुड्स वापस आ गया, दैट विल कम इन सेल्स रिटर्न्स बुक. तो जब सेल्स रिटर्न्स बुक में जब सेल्स रिटर्न होता है, करेक्ट, तो मुझे कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है. करेक्ट, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज क्रेडिट नोट. सो व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड, वन डॉक्यूमेंट इज सेंट टू द कस्टमर and the document is called credit note. Sir, why do we credit the customer, sir? Because customer is the giver ना, वो goods वापस दे रहा है मेरे को, तो customer giver है, तो customer को credit करूंगा. मतलब मैं credit note में क्या लिखूंगा कि dear sir, the day on which I sold goods to you, I debited you. Now I am crediting you because you have returned the goods to me. That is called as credit note. Okay, ये सब बहुत important है, याद रखना. परचेज रिटर्न्स में डेबिट नोट इज इश्यूड, सेल्स रिटर्न्स में क्रेडिट नोट इज इश्यूड. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आई एम टेलिंग. आई रिपीट, परचेज रिटर्न्स, डेबिट नोट इज इश्यूड, सेल्स रिटर्न्स, क्रेडिट नोट इज इश्यूड. फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न्स बुक इज लाइक दिस, ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर परचेज रिटर्न्स बुक. 2 कॉलम्स चेंज हो गया, नेम ऑफ सप्लायर जब नेम ऑफ कस्टमर आ गया, और जहां पर डेबिट नोट था वहां पर क्रेडिट नोट आ गया. सिंपल. Now let's speak about a book called as cash book. This is actually a separate chapter. तो इसका separate video भी मिलेगा आपको हमारे YouTube चैनल में, आप देख सकते हो. उसका description चाहिए तो मैं नीचे दे देता हूं. So cash book is a book in which you will record all cash and bank transactions along with details regarding discount received and discount allowed. तो ये सब चीज जो बुक में रिकॉर्ड होता है उसका नाम है कैश बुक. सेपरेट चैप्टर है आपका सिलेबस में. Bills receivable book, bills payable book, it is not there in your standard 11 syllabus. इसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं उसके बारे में. तो I'll move on to the last book, that is journal proper book. So journal proper book में what we record is, we record all those kind of transactions which are not recorded in any other subsidiary books. जो भी transactions दूसरे subsidiary books में record नहीं होते हैं, ऐसे वाले जो transactions है, all of them will come in journal proper book. I'll share some examples with you all. First one is depreciation, fall in the value of an asset. This is not recorded in any of the above subsidiary books. Purchase book में नहीं लिखते हम लोग इसको, sales book में लिखते नहीं है, cash book में लिखते नहीं है because cash involved नहीं है. मेरे asset का value गिर गया, बस cash थोड़ी गया, तो cash book में नहीं आता है वो. That will come in journal proper book. Bad debts, कस्टमर ने चीट किया, मेरे को लॉस हो गया, बैड डेट्स, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बुक. क्रेडिट परचेज या सेल ऑफ एसेट, एसेट उधार पे खरीदा, एसेट उधार पे बेचा, दैट विल कम इन जर्नल प्रॉपर बुक. गुड्स उधार पे खरीदा, परचेज बुक. गुड्स उधार पे बेचा, सेल्स बुक. यहां पे किसका बात कर रहा है मैं? एसेट का. माइंड इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
Then there are some entries called rectification entries. देखो, accountant is a human being, and many a times he ends up committing certain mistakes while recording transactions in the books. So those mistakes need to be rectified. For that we pass some special entries called rectification entries. सेपरेट चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड 11 में, उसका भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा. You can search. Then there are few more type of entries which are called as opening entries, closing entries, adjustment entries. Correct? वो सब जर्नल प्रॉपर बुक में आता है. अभी आप बोलेगा सर ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? विल स्पीक अबाउट इट इन अनदर टॉपिक कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स. उसका वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. तो स्टे ट्यून टू योर यूट्यूब चैनल. सर आपने इतना सारा बुक्स तो बताया, बहुत अच्छा लगा सर. सर ये तो बताओ कि सर रिकॉर्ड कैसा करते हैं. ओके, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कैसा करते हैं और बाद में उसको लेजर में पोस्ट कैसा करते हैं. लेट अस क्विकली रन थ्रू इट. इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट. ओके, तो लेट्स पिक अप सम एग्जांपल्स. एक ट्रांजैक्शन है, सपोज परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट. दिसंबर 23 को हम लोग ने एक्स से 5,000 का गुड्स खरीदा उधार पे. गुड्स है, उधार पे लिया है, तो कौन सा बुक में आना चाहिए? यस यस यस, परचेज बुक में आना चाहिए. तो परचेज बुक में कैसा लिखने का इसको? तो परचेज बुक में आपको ऐसा लिखना है. दैट्स इट. टू नहीं, बाय नहीं, एक्स डेबिट नहीं, एक्स क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं. जस्ट पुट द डेट, पुट द नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर दिया है तो इनवॉइस नंबर लिखो, नहीं दिया है सीधा अमाउंट लिखो. दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग इन परचेज बुक. Isn't that very easy? Let's pick up one more example. Suppose 26 को you purchase goods from Mr. Y on credit. Again, goods है और purchase किया है on credit. Will it come in purchase book? Answer is yes. तो कैसा लिखने का? Date लिखने का और Mr. Y लिखने का. That's it. This is recording. Example 3. 30th December को you purchase goods from Mr. Z for ₹20,000 on credit. Again, goods on credit. Will it come in purchase book? Yes. So we'll write here Z. Assuming in the month of December there are no other purchases, तो month end में क्या होगा? ये purchase book का total करेंगे हम लोग. So if you add these 5 plus 25, 30, 30 plus 20 comes to 50. Correct? अभी purchase book is journal. Journal से this has to go to the ledger. So in this particular example which you can see in front of you, 4 ledgers will be prepared. How many? 4. एक तो X है, एक Y है और एक Z है. That is for sure. 3 suppliers है, तीनों का अलग अलग ledgers बनेगा in this example. And ये purchase book है, तो purchase book का जो total है will go to purchase account. तो purchase का भी ledger बनेगा. So in short, 4 लेजर्स बनने वाला है इन दिस एग्जांपल. मतलब अगर इसको मुझे लेजर में पोस्ट करने का है तो 4 लेजर्स आई एम गोइंग टू मेक. कौन सा? परचेजेस X, Y एंड Z. अभी परचेज अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा? परचेज अकाउंट में है ना, मैं परचेज बुक का टोटल लिख दूंगा. अच्छा, परचेज बुक का टोटल कितना था? 50,000 था. तो वो 50,000 को हम लोग क्या करेंगे? परचेज अकाउंट के अंदर लिख देंगे. कैसे? ऐसे. December 31 को मंथ एंड को लिखने का टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 50,000. करेक्ट? मतलब परचेज बुक का टोटल हमने लिख दिया परचेज अकाउंट में. तो ये 50,000 क्या है? 50,000 इज द टोटल क्रेडिट परचेजेस इन द मंथ ऑफ डिसंबर. 50,000 इज नॉट टोटल परचेजेस, इट इज टोटल क्रेडिट परचेजेस. इसके अलावा कैश परचेज भी रहेगा. तो वो कहां से आएगा? वो कैश बुक से आएगा परचेज अकाउंट में. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम टेलिंग? अच्छा, किससे खरीदा आपने गुड्स? X, Y और Z, ये तीनों से खरीदा. इन लोग गिवर है, इन लोग तीनों को क्रेडिट करने का. मतलब उन तीनों का क्रेडिट साइड पे रेस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन का डेट्स पे बाय परचेज, बाय परचेज, बाय परचेज ऐसा करके आएगा. This is how it is posted in the ledger. Clear?
अभी सेल्स बुक का बारे में बात करते हैं। ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, गुड्स है उधार पे बेचा है, सेल्स बुक में आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, करेक्ट। आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट, आएगा सेल्स बुक में? यस। गुड्स है उधार पे बेचा है, बिल्कुल आएगा। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी ऑन क्रेडिट, विल इट कम इन द सेल्स बुक? यस। गुड्स है उधार पे बेचा है, सेल्स बुक में आएगा, लिख दिया। एज्यूमिंग नो अदर ट्रांजैक्शन दैट आर इन दिस मंथ, सो मंथ एंड में सेल्स बुक का टोटल करेंगे कितना? 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 20 60, correct? This will now be posted to the ledger. In this example, how many ledgers will be made? 4. Yes, you guessed it right. A, B, C, 3 customers है, उनका ledgers, and sales book का total will go to sales account. अच्छा, सेल्स अकाउंट का कौन सा बाजू में जाएगा? तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्रेडिट साइड पे क्यों जाएगा? बिकॉज सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड पे हम लोग सेल्स बुक का टोटल को लिखेंगे। इज दिस वेरी क्लियर? तो व्हाट इज दिस? टोटल क्रेडिट सेल्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। टोटल सेल्स मत बोलना इसको, कैश वाला सेल्स भी रहेगा, वो कैश बुक से आएगा इधर, ये खाली उधार वाला सेल्स है। ए, बी और सी जिनको आपने माल बेचा वो लोग रिसीवर है, तो उन लोग का डेबिट में जाएगा वो, टू सेल्स करके ऑन द रेस्पेक्टिव डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इजी। नाउ सपोज ये मेरा परचेज रिटर्न्स बुक है, उसमें 3 एंट्री है, टोटलिंग करेंगे। सो 1500 प्लस 2500 इज 4000, 4 and 2 is 6, 6000 आता है। 6000 जो परचेज रिटर्न्स बुक का टोटल है, दैट विल गो टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट का क्रेडिट साइड। उल्टा ऑफ परचेज ना, परचेज को हम डेबिट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब ये टोटल परचेज रिटर्न्स अकाउंट का क्रेडिट साइड पे जाएगा। और जिनको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, एक्स, वाई और जेड, जिनको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, इन लोग रिसीवर है, तो इन लोग का डेबिट में जाएगा। दिस विल लुक लाइक दिस। मंथ एंड में परचेज रिटर्न्स बुक का टोटल विल गो टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट का क्रेडिट साइड, एंड जो भी सप्लायर को हम लोग ने माल रिटर्न किया, दे आर द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर करेगा हम लोग उनको ऑन द रेस्पेक्टिव डेट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। सिमिलरली, इफ दिस इज माय सेल्स रिटर्न्स बुक, उसमें 3 ट्रांजैक्शंस है, ऐड इट, टोटल कम्स टू से 10,000, सो दिस 10,000 टोटल विल गो टू सेल्स रिटर्न्स अकाउंट का डेबिट साइड, बिकॉज सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट, लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट करेगा मैं सेल्स रिटर्न्स को। और जो कस्टमर मेरे को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, दे आर द गिवर, तो उन लोग को मैं क्रेडिट करेगा, मतलब उन लोग का क्रेडिट साइड पे लिखेगा बाय सेल्स रिटर्न्स, बाय सेल्स रिटर्न्स, बाय सेल्स रिटर्न्स ऑन द डे ऑन विच दे रिटर्न द गुड्स। सो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी यूजफुल टू यू। सब्सिडरी बुक्स का अच्छा खासा रिविजन हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।